ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਕਾਦੀ ਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦੰਤਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, DMC 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਫਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਨਾਜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲ ਖਾਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਏ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ, ਅਰਬਨ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਲਗਭਗ 40 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਸਿਸਵਾ ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀ ਕੁਛ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ, ਕੁਝ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਡਮ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ हैं, ਡਾਕਟਰ ਮਨਫੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਚ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਲਦੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ
ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ हैं ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ समय ज़्यादा लगाने हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंस ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ੋ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਦੇਖਣਾ चाहता है, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ समझ नहीं लगी। सो गुलाटी साहब, ऐसा है ये जो मॉडल आपने बना लिया, ये फ्रूट प्लांट की और वेजिटेबल प्लांट की सिलेक्शन कैसी की? ये सिलेक्शन जो है, जो केवीएम से हमने जो सीखा, वहाँ से हमें ये मतलब ज्ञान जो मिला, उससे ये हमारी असेसमेंट हुई कि कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो ट्रीज़ सबसे पहले जो है लगने चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ आके किया, हमने अपने पूरी फार्म पे चारों तरफ 250-300 के करीब जो है फ्रूट ट्रीज़, डिफरेंट वैरायटीज़, अबाउट 40 वैरायटीज़ जो हमने लगाए और वो अभी फ्रूटिंग स्टेज पे आने वाले हैं। नेक्स्ट सीज़न में मोस्ट प्रोबेबली वो फ्रूटिंग सीज़न पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे जो मेंबर थे, सबकी डिमांड ये थी भी सीजनल जो है वेजिटेबल्स, वो मार्केट में हम जो लेते हैं वो जहर उनमें होता है, तो हम सीजनल वेजिटेबल भी जाएं। हमारा वैसे जो प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है, बहुत इसमें इंटेग्रेटेड फार्म हम सोच रहे हैं। इसमें हमने बी कीपिंग भी सोची है, इसमें हमने डेयरी फार्म भी सोचा है और इसमें हमने जो नेट लगा के इंडोर जो सब्ज़ी करने का वो भी सोचा है। वो अभी धीरे धीरे हमारा चल रहा है। फिलहाल हम जो है वेजिटेबल जो है सीजनल वेजिटेबल्स वो लगा रहे हैं और बी कीपिंग कर रहे हैं। एक हमारे ना कहावत है पंजाब में कि जिसकी गाड़ी खुब जाती है, फंस जाती है, उसको ज़्यादा तजर्बा हो जाता है कि कैसे निकालनी है। आपने फार्मिंग शुरू की, कुछ खट्टे मीठे तजर्बे भी हुए होंगे? बहुत सारे ऐसे तजर्बे हुए। सबसे बड़ा तजर्बा तो यही हुआ, मतलब जब हम नहीं थे इसमें खेती में, तब हमें लगता था भी किसान तो ऐसे ही कहते हैं, उनको बहुत आमदन होती है, ये तो बकवास करते हैं, कुछ नहीं, अच्छा काम है, थोड़ी सी ज़मीन हो, 1 एकड़ में भी बहुत कमाई हो सकती है। जब हम इसमें आए तो हमें पता चला कि किसान के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। वो 1 एकड़ तो क्या, अगर 4-5 एकड़ वाला भी किसान है, वो भी 15-20 हज़ार से महीने से ज़्यादा नहीं कमा सकता, बशर्ते के केवीएम का मॉडल जो है इंटेग्रेटेड खेती पे जाएं। इंटेग्रेटेड खेती में क्या है, कॉस्ट कम करना और प्रोडक्शन ज़्यादा करना और वो चीज़ें लगानी जो प्रॉफिटेबल हैं। अगर किसान उसमें आ जाए और ऑर्गेनिक करने लगे तो मेरा ख्याल है अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि भूखा मरेगा किसान, कभी भी ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इसमें एक तो जज्बा, पैशन, एक खेती निम्रता भी सिखाती है, सब्र संतोष भी सिखाती है। बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा हो गया, हमने कुछ उगाया, अब लाइक कोई सब्जी लगाई, क्यारी बनाई, अब उसमें हुआ ही कुछ नहीं और हम इंतज़ार करते रह गए। हमारे साथ कितनी बार हो चुका है ऐसा। तो थोड़ा मन को समझाना पड़ता है कि हाँ ठीक है कि हर वक्त आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको नहीं उपज होगी, ठीक है, उसको हम अपना एक्सपीरियंस और लर्निंग मान के आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं उससे कि आगे क्या करना है। अब हमें पानी की बहुत समस्या आई, हमने फिर ट्यूबवेल लगाया, अब बिजली की समस्या हो रही है, अब हम सोलर पावर प्लांट के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे ही सीख रहे हैं अनुभवों से और आगे, पर हम हिम्मत नहीं हार रहे। एक समय आया था जब हम बहुत हिम्मत हार गए थे, बट फिर मन के किसी कोने ने बोला कि नहीं यार, अब तो जोर लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रोजेक्ट को असफल नहीं होने देना है। तो साल पहले ऐसे ही एक कंडीशन थी, पानी की बहुत समस्या थी और मेंबर्स नाराज़ हो रहे थे, पर फिर हमने और जोर लगाया। फिर कुछ लोग टूटे, कुछ लोग जुड़े और हमने इम्प्रूवमेंट की और हमने मशीनरी इक्विपमेंट बहुत लिया है, रोटावेटर लिया है और एक खाद का सिस्टम बनाया है और हम गाय रखना, काउडंग यूज़ करना, बी कीपिंग, नर्सरी खुद की, तो बहुत चीज़ें ऐड करते गए हम रास्ते में और हमें लगभग 2.5 साल हुए हैं ये करते हुए, अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। जितेंद्र जी, यंग जनरेशन है वो तो चाहती है कि हम तो कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, तो आप कहाँ इस
चक्कर में फंस गए डॉक्टर साहब की राय? नहीं नहीं सर, ये इसी डॉक्टर साहब की ही जो हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जो सारी सोसाइटी को देखते हैं कि कैसे अच्छे से अच्छे चीज़ें कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो उसको देख के ही मैंने कहा भी अभी स्टार्टिंग में ही अगर जुड़ पाऊँगा तो 5-7 साल में काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ और वो आगे इंस्पिरेशन बनेगा। जैसे ही हमारा ये है मॉडल और ऑर्गेनिक फार्म है, तो ये एक इंस्पिरेशन बनेगा सबके लिए और हमें इससे लोगों को और जोड़ सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद इंस्पायर होकर खुद ऐसे मॉडल ऑर्गेनिक फार्म तैयार करेंगे और उसमें जो केवीएम है वो काफ़ी हमें देते हैं सारे। आपके जो कलीग हैं जब उसको बताते हैं आपकी ऐसा फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, वो पहले तो आपकी बात पे यकीन करते हैं, हंसते हैं, या वो बोलते हैं कि हमें भी इंटरेस्ट है जो उसमें? बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले उनको लगता है कि ऐसे ही होगा, जस्ट नाम के लिए ऑर्गेनिक होगा, बट जब उनको पता लगता है कौन कौन से मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं जो इसको देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, मोस्टली हमारी लिस्ट में जो ज़्यादा मेंबर हैं डॉक्टर्स हैं, उन्हीं का ही स्टार्टअप है एक तरीके से, तो उनको रिलाय होता है कि हाँ अगर डॉक्टर अच्छा सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कुछ बात होगी तभी कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में बहुत कुछ यहाँ पे मतलब कि हर्डल्स हर चीज़ में आती हैं, बट एक जो है कि हाँ करना है तो करना है और इसको आगे लेके जाना है, तो वही एक कितने इंस्पिरेशन। लोग हैं जो जितेंद्र को देखकर आपके दोस्त मित्र या फैमिली मेंबर घर में उन्होंने किचन गार्डनिंग शुरू कर ली, जैसे केवीएम का कोई मॉडल कंसेप्ट है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया? मेरी नॉलेज में भी 7-8 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो किचन गार्डनिंग अच्छे से कर रही हैं और उनको कहीं पे भी इनपुट चाहिए होते हैं तो उनको हम हेल्प करते हैं देने के लिए और वो काफ़ी खुश रहते हैं कि हाँ कितना मन खुश होता है जब? बहुत अच्छा जी। और इवन जो ये फ्रूट्स जब आते हैं घर में आते हैं, पता लगता है यहाँ पे खुद आके एक्सपीरियंस होता है कि हाँ ये कैसे ग्रो हो रहा है, तो वो वेस्टेज जो पहले हम करते थे उसको अब एक भी चीज़ छोड़ने का मन नहीं करता कि इसको फेंक दिया जाए या कुछ है, और उसका स्वाद कुछ अलग ही लगता है। गुलाटी साहब, इसमें एक बात और है, बंदे 4-5 आपके पास वर्कर हैं ना, आपके पास पंछी भी आपको मित्र बनने कोशिश होगी कि आप आए और आपको देखे कि ये भी काम कर रहे हैं, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जिससे यहाँ पे जो है उसको खा रहे हैं? जी जी, हमने बहुत कोशिश करके हम जब शुरू में आए थे तो यहाँ पक्षी कोई आता ही नहीं था। आसपास हमारे जितने भी केमिकल खेती होती है, मोस्टली जीरी लगती है या मक्की लगती है, तो हम देखते थे यहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। एक साल बाद फिर हमने कुछ घोंसले यहाँ लगाए आर्टिफिशियल, तो कुछ दाना डालने के लिए उनको प्रोग्राम बनाया, पानी के लिए उनका प्रबंध किया। तो अब ये हाल है कि आप कहीं भी खेत में कहीं भी घुसोगे, किसी तार पे भी देख लो, आपको पक्षी दिखेंगे। और हमारे जो रूम है, रूम के सामने एक पक्षी कौवा है जो बहुत ऊंचाई पे घोंसला बनाता है, पर उसने शहतूत के ऊपर बहुत ऊंचाई पे घोंसला बनाया हुआ है, उसको सेफ लग रहा है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगा उनको? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फैमिली मेंबर आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसके मेंबर, उनसे भी बात करेंगे। मेनली कंसेप्ट आपका फूड का है कि हमारा फूड अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। इस कंसेप्ट को कैसे देखते हो कि लोग इधर को टर्न कर रहे हैं, या अभी भी जैसे आपने मेडिसिन लिख दी, मैंने बोला कि सिप्ला की ले लें या रनबैक्सी की ले लें, फूड तो ऐसा नहीं है, फूड तो ऑर्गेनिक ही है। देखो, इसमें ना जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागरूकता आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, बहुत लोग बहुत अवेयर हैं, बट कुछ सिस्टम ही ऐसा बन गया हमारा कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। उस बिजी लाइफ में मेजॉरिटी लोगों से आप बात करोगे ये कि मैं कहाँ से समय निकालूं, मैं कैसे करूं, मेरा काम नहीं है कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं कैसे करूं। बट अब हमें अपनी सेहत की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी, और मुझे लग रहा है जब तक हमारे सारे किसान भाई जागरूक नहीं हो जाते और ऑर्गेनिक नहीं करना शुरू करते, तब तक हमें जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता जो है, उसको खुद जागरूक होके ऑर्गेनिक शुरू करना पड़ेगा। अपने दुकानदार को, अपने जो जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, सब्जी वाले भाई को और सबको बोलना पड़ेगा यार हमें तो ऑर्गेनिक चाहिए। वो आगे किसान को जोर लगाएं, और किसानों में तो जागरूकता अब धीरे धीरे बढ़ाई रही है। केवीएम खुद इतना काम कर रही है, खेती विरासत मिशन, तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। पर जब तक सब लोग जागरूक नहीं हो जाते या गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं पास करती कि भी ऑर्गेनिक ही होगा, तब तक हमें खुद जिम्मेवारी लेना ज़रूरी है। तो पीजीएस सर्टिफिकेट भी है जो केवीएम देता है। सिस्टर, हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की, अभी कोरोना निकला है, कोरोना में तो अपने भी कहते थे कि पहले सैनिटाइजर करके आओ, फिर मास्क पहनो, तो आपको तो इस फ्रूट का या सब्जी का कोई दिक्कत नहीं आई होगी? नहीं, कोरोना तो स्कैरी था ही, लेकिन जैसे हम सब्जी वाले से सब्जी लेते थे, उसको बोलते थे यहाँ रख दो, 2 घंटे बाद उसको धूप लगनी चाहिए।
जी और मैं हम रेगुलर फार्म पे आते रहे हैं। ड्यूरिंग कोरोना 3-4 महीने नहीं आ पाए, तो वो भी हम सोचते हैं कि आना चाहिए था, उस टाइम भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, बट सिंस माहौल ही ऐसा बन गया था तो हम भी कुड नॉट भी, मतलब हम जब आपने शुरू किया फार्मिंग का, ऑर्गेनिक का, तो कितने लोगों ने कहा कि क्या काम है, किस काम में लगे आप? नहीं, वो तो अपनी चॉइस थी कि आई वॉज हियर है ना। तो मैंने तो जॉब छोड़ी है ये काम शुरू करने के लिए। हाँ जी, आई वॉज वर्किंग, मैंने 27 साल जॉब की है। 27 साल के बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं, 10 साल जो जॉब बची है वो टाइम यूटिलाइजेशन इधर कन्वर्ट करके बेटर उसका रिजल्ट मिल सकता है। उस वक्त क्या कंसेप्ट था माइंड में, जब सब कुछ मार्केट में मिल रहा है, फ्रूट अच्छे से अच्छा मिल रहा है, इंपोर्टेड फ्रूट मिल रहा है, बढ़िया सब्जी मिल रही है, फिर 10 साल की जॉब छोड़ने की नौबत क्यों आई? ये एक्सपीरियंस होता है, कोई ना कोई लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। मेरी सिस्टर की कैंसर के साथ डेथ हुई, तो लगा कि ये बीमारी जो है रीज़न ढूंढा जाए एंड लोगों को उसमें से बचाया जाए। सो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। ये करने से लोगों को फ़ायदा तो हो ही रहा है, अपनी फैमिली को तो हो ही रहा है, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। ये कंसेप्ट बहुत कॉस्टली भी है, टफ भी है। जब कोई फ्रूट यहाँ से लेकर जाते हो, कोई सब्जी लेकर जाते हो, मन को कितनी सेटिस्फेक्शन होती है। 100% इससे बेटर हो ही नहीं सकता। हम थोड़ी सी किचन गार्डनिंग जैसे घर में कर लेते हैं, अपनी जब नई चीज़ निकलती है उसको देख देख के कितना बंदा खुश होता है। और यहाँ तो पता है कि 50 फैमिलीज़ में वो जाना है, तो 50 फैमिलीज़ को आप सर्व कर रहे हो, तो उनके लिए कुछ कर रहे हो तो मन तो खुश होता ही है। लोगों को 50 फैमिलीज की ब्लेसिंग कितनी मिलती है, उसका कोई कीमत है? एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी से भी, लेकिन आई एम डूइंग माई ड्यूटी, है ना। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ, बाकियों को जो उनको ब्लेसिंग देनी है वो उनकी मर्जी है। कभी ऐसे सोचा था कि इस मिर्च का पत्ता ऐसा होता है, कद्दू का पत्ता? नहीं, सब पता था पहले, पैशन था, इसीलिए यहाँ आए। आई वॉज एजुकेटेड इन दिस, मैं बीएससी मेडिकल किया हुआ है, तो इस फील्ड की नॉलेज तो थी ही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका अब मिला है। जो घर में लेडीज़ हैं, वर्किंग है चाहे, उनको क्या, आपका मैसेज क्या है कि जैसे आपने एक टर्न लिया है, मेंटली सेटिस्फेक्शन भी है, फूड भी अच्छा ले रहे हो, और ब्लेसिंग तो है, और ये खुशी जो किसी कीमत पर नहीं मिल रही वो भी उसको भी अचीव करें? ये सबने अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए करना है, तो अपनी जिम्मेवारी खुद उठानी पड़ेगी सबको। तो अपनी फैमिली के लिए व्हाई नॉट, है ना, इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो सबको ही करना चाहिए। संदेश तो यही है कि एवरीबडी शुड कन्वर्ट, बाकी चॉइस अपनी अपनी है, यू कांट कंपेल एनीबडी। गुलाटी साहब, मन तो बहुत खुश है यहाँ पे, आपका तो टाइम इधर पास होता होगा, बाकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी ऐसी है या नहीं? फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो पूरी है, पर कई बार ऐसे हो जाता है जैसे यहाँ टाइम बिताना है तो उनको ऐसे लगता है घर पे टाइम कम दे रहे हैं, पर जब वेजिटेबल्स आती हैं 100% जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, तो उनका टेस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो फिर उनको लगता है भी नहीं, ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। गुलाटी साहब, एक आम आदमी को आप क्या सुजेस्ट करोगे कि वो कम से कम अपने घर की सब्जी, घर का फ्रूट उगाने के लिए कितना उसको टाइम चाहिए, कितना उसको पेशेंस चाहिए, कितना उसको फैमिली का जो अपना कह सकते हैं कि इनकम का सोर्स भी हो सकता है, क्योंकि 100-200 की सब्जी जब घर आती है तो महीने का 4-5 हज़ार तो बचता ही है ना, और सेकेंडली उसमें फ्रूट न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। मेरा तो सजेशन ये है, हर फैमिली को अपना किचन गार्डन मेंटेन करना चाहिए। किचन गार्डन के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हम अगर 10 बाई 10 फुट में भी करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ, अगर 10 बाई 10 फुट में हम लगाते हैं तो कम से कम हम किचन की 5, 6, 7 आइटम्स जो हैं वहाँ पैदा कर सकते हैं, वो सफिशेंट है। और उसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, 1 घंटा आप सुबह डिवोट करो, 1 घंटा शाम को डिवोट करो, और अच्छे फार्मर के साथ या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जैसे KVM है उसके साथ जुड़ो, तो आपको एक्सपीरियंस देंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे और अच्छे बीज आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छी खाद आपको सजेस्ट करेंगे। कोई खर्चा नहीं, आपके किचन से खाद जो निकलेगी वही सफिशिएंट है आपके घर के किचन गार्डन के लिए। सो डॉक्टर साहब ने हमारे पास, डॉक्टर साहब कैंसर के आप बड़े
डॉक्टर हो, नामी डॉक्टर हो, ऐसी बीमारियां, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, इंडिया में तो बहुत सारी बीमारियां हैं, हॉस्पिटल भी बड़े खुल गए, इलाज 100 का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है, करोड़ का भी हो सकता है। मैं आपके प्रोफेशन के उल्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसी बीमारी से कैसे बचा जा सकता है कि ज़रूरत ना पड़े, आपके पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आम बंदे को क्या करना चाहिए? देखो, इसमें बहुत एस्पेक्ट्स हैं। जो खाना है, डाइट है, वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब एक समझो, अगर हम पेट्रोल की गाड़ी में मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो कैसे उसका इंजन ख़राब हो जाएगा ना। तो सिंपली क्या है, हम अपनी जो अपना इंजन है, अपनी फूड पाइप है, उसमें किस तरह का खाना डाल रहे हैं और वो वैसे ही उसका असर अपने शरीर पे होगा। साथ में खाना खाएंगे, एक तो हम कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो आई एम मेनली फॉर वेजिटेरियन डाइट, जिसमें कि फल और सब्जियां, और जितना रॉ हो सके, कच्चा जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना ऑर्गेनिक हो सके वो बहुत ही अच्छा है। तो कोशिश करें कि सब क्लीन हो, केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक हो, और कच्चा जितना कंज्यूम करें, ताज़ा जितना कंज्यूम करें, और जितना ज़रूरत है उतना खाएं। एक ये भी ज़रूरी है कि क्या है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग भी शरीर पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, लीवर पे, आंत पे, सारे ऑर्गन्स पे, और फैट जमा करना, और वो सारा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जितनी प्रोसेस्ड चीज़ें लेते हैं, जितना हम उसमें शुगर्स ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, या रिफ़ाइन करके मैदे की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा डाल रहे हैं, या बार बार खाने को गर्म करके खा रहे हैं, वो सारा खाने की क्वालिटी को कम करता है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कच्चा और ताज़ा और ऑर्गेनिक, ये कीजिए। और साथ में एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं। अगर हम योग, ध्यान, मेडिटेशन और एक्सरसाइज साथ में कर लेते हैं तो शरीर और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहेगा, और बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। बाकी ठीक है, शरीर है, कुछ ना कुछ तो पेच ढीले हो सकते हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है, पर जितना हमारे हाथ में है उतनी कोशिश तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। सो लास्ट हम गुलाटी साहब, आज का दिन आपका अच्छा रहे और लोगों का भी ऐसा रहे, लोग भी आपको एक इंस्पायर के तौर पे देखें, मॉडल के तौर पे देखें, कोई नुक्ता बता दें लास्ट में। बस ये नुक्ता तो कुछ भी नहीं है, पेशेंस और हार्ड वर्क। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। पत्थर से पानी निकाल सकते हो, ज़मीन से अच्छी अच्छी सब्जियां निकाल सकते हो, फ्रूट निकाल सकते हो, सब कुछ हो सकता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। पेशेंस और हार्ड वर्क जो है बहुत ज़रूरी है। सो ये है लास्ट में हम जो खेती विरासत मिशन का एक उद्देश्य है कि ऑर्गेनिक शुद्ध फूड आपके थाली पे हो, ऐसा मिशन लेकर चले हैं डॉक्टर सचिन और गुलाटी साहब। और सचिन डॉक्टर के बेटे भी हमारे पास हैं। बच्चे, कैसे फील करते हो आपके हाथ में ये अपने घर की खुद की मिर्च है? बहुत अच्छा है। पहले तो सिर्फ स्कूल में ही देखा था कि कैसे सब कुछ होता है, यहाँ के आलू उगाए और पता चला कि केला जब उगता है एक और पेड़ निकलता है, उससे केला निकलता है। तो सारी फल सब्जियों के बारे में पता चला, खुद भी उगाया। आपके दोस्त मित्र हैं, जब उनको बताते हैं तो वो हैरान नहीं होते भी आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे तो होना नहीं चाहिए? हाँ, पर वो सोचते हैं कि बिना केमिकल्स के बड़ी तो होती नहीं होंगी, छोटी छोटी हो जाती हैं। बट फिर मैंने उनको फोटोज भी दिखाई थी कि अच्छे से। कोई प्लांट्स ऐसे हैं जो आपने खुद लगाए हो और पास में उसमें कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल्स लिया हो, तो कितनी खुशी होती है मन से? हाँ, जैसे नींबू, आलू, मेथी और ये सब, ये घर पे भी उगाए हैं हमने। मेरे को बताओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में भी एक क्लास होनी चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए एग्रीकल्चर का, जिसमें अपने अपने प्लांट्स के बारे में या घर में प्रैक्टिकल हो सके? ऐसा भी कोई स्कूल में है आपके? हाँ, कभी कभार साइंस प्रैक्टिकल में हमें लेके जाते हैं बाहर। डॉक्टर साहब, जो कैंसर वर्गे चीज़ां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बीपी, शुगर, तो हमारे सिलेबस में भी थोड़ा चेंज आना चाहिए, जैसे बच्चे के स्कूल में। बिल्कुल, हमारी शिक्षा पद्धति की बहुत कमज़ोरी है कि जो हमें जीवन में एक्चुअली में इस्तेमाल करने वाली जो नॉलेज है वो हमें पूरी नहीं जानकारी मिलती है। बड़ी सिंपल सी एक मैं उदाहरण देता हूँ। हम मैथमेटिक्स में इतने एडवांस्ड अलजेब्रा और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और तो सारी उम्र किसी काम नहीं वो आता। किसी काम नहीं आती। केमिकल फार्मूले किसी काम नहीं आते। हमें बेसिक चीज़ें, इतना मैथमेटिक्स पढ़ लो और एक सिंपल इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं हम भरने के काबिल।
सब कुछ करके, तो बैंक में चले जाओ फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं भर सकते हैं। तो एक सिंपल चीज़ें सिखानी ज़रूरी हैं ताकि हर इंसान, जो एक आम आदमी सक्षम हो एक रूटीन काम करने के लिए। और खेती से जुड़ना और खुद की सब्जियां फल उगाना, किचन गार्डनिंग, ये तो एक सिलेबस का एक पक्का हिस्सा कर देना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। और एक हर इंसान को ना ये होना चाहिए कि उसको कोई 10th का या कोई सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब वो 100 पेड़ उगा देगा। कुछ मैंडेटरी कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए। ऐसा है कि खेती विरासत मिशन का जो उद्देश्य है, मिशन है, उसको लेकर चले हैं गुलाटी साहब, गुप्ता जी, जितेंद्र जी, हमारे बहन जी और ये बच्चे। और आस करते हैं कि ऐसे मॉडल हम आगे भी दिखाते रहेंगे और आपको इंस्पायर करेंगे। आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपने विजिट करना हो तो आप सिसवा रोड है चंडीगढ़ के साथ, मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्म है, गुलाटी साहब के नाम से, सचिन गुप्ता जी के नाम से आप ढूंढ सकते हैं इसको। और ये 4 एकड़ लैंड है। 4 एकड़ में इन्होंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बी कीपिंग का और गॉट फार्मिंग का भी कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा जितना भी है ये सभी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई रे स्प्रे नहीं यूज़ की जा रही है। तो खेती विरासत मिशन आगे भी ऐसे प्रोग्राम लेकर आएगा। आपका सुझाव, आपका कोई शिकायत, आपका जो कमेंट है वो उसकी उड़ीक में मैं जसविंदर बिट्टा।